पूरे 1.5 घंटे के बाद इन्होंने लड़की दी है हमारी। मैं ऊपर नीचे चक्कर काट काट के पागल हो गई। मेरे को जब रेफर कर दिया, अब दे क्यों नहीं रही हमारी बेटी, हमने पैकिंग करनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, और 1.5 घंटे के बाद जब हमें दी गाड़ी, मैं फिर ऊपर गई, मैं इनके आईसीयू वाले स्टाफ से जाके लड़ी। मैंने कहा हमारी बेटी क्यों नहीं दे रहे हो आप। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਓ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਕਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਹੁਣੇ ਏਕਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵੀਪਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ CPR ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, 5 ਕਰੋੜ ਦੇਣਗੇ, 10 ਕਰੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਖੋ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ कुछ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, जानते हैं। कल हम अपनी बेटी को लेके यहाँ आए, डॉटर इन लॉ को लेके आए थे हॉस्पिटल में। उसकी डिलीवरी होनी थी, फर्स्ट डिलीवरी। तो हमने उसको 9:30 बजे एडमिट करा था। तो 11 बजे के आसपास हमें पता लगा कि वो बेटी को पेन प्रॉब्लम हो रही है, तो सिजेरियन का डिसीजन लिया गया कि सिजेरियन करवाना है। हमने डॉक्टर साहब को बोला कि इसका सिजेरियन करना है। उन्होंने बोला ठीक है हम कर देते हैं सिजेरियन, ठीक है। सिजेरियन करने के लिए उसको ले गए और 20-1 मिनट बाद ही, आधे घंटे के बाद हमें हमारी भाई कहते डॉक्टर हुई है और इसको हमने नर्सरी में रखना है। तो हमने कहा रख लो, कोई बात नहीं, भी प्रॉब्लम हुई थी। तो कहते नहीं आपका बड़ा सही डिसीजन था, आपने सिजेरियन करवा लिया है ना, वेट नहीं करी है। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा वो हमारी एकता ठीक है। तो कहते हाँ ठीक है, उसका थोड़ा BP ऊपर हुआ था। तो मैं कहा डॉक्टर साहब BP तो आपने ही देखना था उसका, है ना। चलो मैं आ गई, मैं एकता के पास चली गई, हम अपनी बेटी को देखने चले गए, जो बच्ची हुई है हमारी 1 दिन की। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जब ये नीचे OT से नीचे लेके आ रहे थे, कहते हैं उसको 2 घंटे के लिए ICU में रखना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो आपका प्रोसेस है, आप रखो उसको ICU में। ICU में लेके आए, वो OT से निकलते ही उसने वॉमिटिंग कर दी। मैंने उनको बोला कि वॉमिटिंग साफ़ कर दो इसकी। तो इनका स्टाफ बड़े रूड तरीके से बात करता है कि आपको वॉमिटिंग ही पड़ी, हम उसको स्टेबल कर लें। मैं एकदम चुप कर गई। मैंने बोला कि भाई हाँ स्टेबल करना ज़रूरी है पहले पेशेंट्स को, है ना। तो वहाँ पर खड़े हुए उसका BP ऊपर नीचे हो रहा था। तो मैं इनको बोला कि भाई उसका BP ऊपर नीचे हो रहा है। कह रहे मैडम लगता है आधा घंटा स्टेबल होने में उसको। मैं फिर चुप कर गई, मैं स्टूल लेके ना बैठ गई वहाँ पर। मेरे को कहते हैं आप जाओ बाहर। मैं कि मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं बैठी हूँ, आप करो ट्रीटमेंट, कोई बात नहीं है, जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो आप करो ट्रीटमेंट। मैं आधा घंटा वहाँ बैठी। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, बोला कि ना आपकी बेटी अब ठीक है, तो मतलब कि आप लोग मतलब कि आप जाके आराम से बैठ सकते हो, हम दोबारा एक जना मिलने आ जाना। हम लोग ऊपर आ गए, बैठ गए रूम में, 64 नंबर रूम में बैठे, हम खाना वाना खाने लगे। तो क्या बोलते हैं, हम बाहर निकल के दोबारा हमने कहा बेटी को बुला लेते हैं, देखाते हैं एक बारी छोटी बेटी को और उसको भी। तो कहते हैं कि बाहर से ना 2 नर्सें भागी हुई आ रही थी कि आपको ना डॉक्टर साहब बुला रहे हैं जल्दी। हम घबरा गए, क्या हो गया। तो मैं नीचे और मेरी सिस्टर जिसकी डॉटर इन लॉ है, हम नीचे फटाफट भागे हुए आए। तो ये डॉक्टर ममता और 3-4 लोग आसपास और खड़े थे। तो मेरे को कहते हैं कि हमने ना आपको इसलिए बुलाया कि इनको चंडीगढ़ भेजना पड़ेगा। मैंने कहा चंडीगढ़ भेजना पड़ेगा, मैं कहा अभी तो आप बोल रहे थे ठीक है बिल्कुल। तो कहते हैं क्या बोलते हैं कि नहीं हम आपको मतलब कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपको पहले बता रहे हैं, आप घबरा ना जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं भी लेके जाना है हम ले जाएंगे, तो आप बता दो क्या करना है।
तो हम इट मीन्स हम इन द मीन टाइम हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने हमारे को बोला कि जैसे ही भाई, मैंने कहा आप हमें बताओ कब लेके जाना है। तो हम किसी डॉक्टर से बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि आप वेट मत करो, कि आप ले जाओ, अभी अगर स्टेबल है ये कह रहे हैं तो आप ना ले जाओ इसको 40s में मैक्स में। हमने सारा अरेंजमेंट कर लिया। ब्लड का इन्होंने 5 मिनट पहले एक बॉटल ली, 5 मिनट के बाद मुझे बोलते हैं कि 2 बॉटल्स ना और चाहिए। मैं कहा भाई जब आप रेफ़र कर रहे हो तो हमारे से ब्लड किस लिए पैसे ले रहे हो। हमने वो पैसे भी दे दिए हमने इनको पैसे। तो फिर इन्होंने कहा कि हम ना आपको दे देते हैं, रेफ़र कर देते हैं, आपकी बेटी को ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मुझे पूरे 1.5 घंटे के बाद इन्होंने लड़की दी है हमारी। मैं ऊपर नीचे चक्कर काट के पागल हो गई। मेरे को जब रेफर कर दिया, अब दे क्यों नहीं रही हमारी बेटी, हमने पैकिंग करनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। और 1.5 घंटे के बाद जब हमें दी गाड़ी, मैं फिर ऊपर गई, मैं इनके आईसीयू वाले स्टाफ से जाके लड़ी। मैंने कहा हमारी बेटी क्यों नहीं दे रहे हो आप। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहाँ पर अंदर। तो मैं कहा जब भेजना तो हमारे को क्यों नहीं भेज रहे आप भेजो हमारी बेटी को हमारे साथ। और 15 मिनट के अंदर लड़की यहाँ से निकलते ही जैसे ही ओटी से बाहर निकली, सड़का क्रॉस नहीं किया। लड़की की सांस फूट रही थी इतनी ज्यादा। हमने उसको पूछा, उसने बोला कि नहीं, उसके पापा साथ थे। वो लड़की सुबह जब मैं एक सेकंड में फोन, मैं बताता हूँ, एक सेकंड में मेरे साथ फोन पे बात हो रही थी कंटिन्यूसली। तो मैं कहा जी इनके साथ कोई डॉक्टर आया एम्बुलेंस में, कोई डॉक्टर नहीं भेजा इन्होंने। जब इतनी सीरियस कंडीशन है, आप एक पेशेंट को रेफर कर रहे हो चंडीगढ़, एक मेडिकल डॉक्टर तो भेजो। इन्होंने बोला हमें आईसीयू का बेस्ट स्टाफ देके भेजना, आपके जो चार्जेस है हम सारे देंगे आपके। ऊपर सारे स्टाफ से पूछो, मैंने सबको बोला कि कितने पैसे नॉट सेंड एनी मेडिकल स्टाफ। और कौन गया साथ में एम्बुलेंस में, आप इमेजिन कर सकते हो, एक स्वीपर, राइट एक स्वीपर गया। मैंने उससे फोन के बाद मैं क्या कर रहे हो तुम, कहता जी मैं इसको सीपीआर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कहा कितनी दूर है यमुनानगर, कितनी दूर है मुलाना, बिकॉज हमें तब इमीडिएट मेडिकल अटेंशन मिले। कहता जी मुलाना हॉस्पिटल यहाँ से 12 किलोमीटर है, यमुनानगर यहाँ से 17 किलोमीटर है। मैं कहा चलो तो आप इसको इमीडिएटली मुलाना लाओ। कहता जी डेथ हो गई है, ऑलरेडी डेथ हो गई है। तो यानी कि वो लड़की 15 किलोमीटर भी ट्रेवल नहीं कर पाई। इससे ज्यादा बड़ी नेग्लिजेंस क्या हो सकती है। अगर लड़की का इतना ज्यादा सीवियर ब्लड लॉस था, इतना ज्यादा हेमरेज था, तो आपने 1.5 घंटा क्यों लगाया उसको पैकिंग करने के लिए, 1.5 घंटा उसको क्यों रोक के रखा आपने। इससे ज्यादा और मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होगी कि आपने एक डॉक्टर भी नहीं भेजा साथ में। मैंने बोला यहाँ पे पैसे ले लो जितने चाहिए, पर डॉक्टर भेजो आईसीयू का स्टाफ। आप चलो मेरे साथ आईसीयू, जितनी नर्सें थी, जितने वहां पर डॉक्टर पड़े थे। अभी मेरे से इनकी बात हुई डॉक्टर्स की, मैं पूछा आपके पास इक्विपमेंट्स थे इसको, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? नहीं थे इनके पास, कोई इक्विपमेंट नहीं है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। कि जी वो टर्शरी हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। व्हाई डिड यू एडमिट द पेशेंट ओवर हियर इफ यू डोंट हैव सेट इन द मॉर्निंग, दैट सॉरी वी डोंट हैव दिस अरेंजमेंट, काइंडली गो आउटसाइड। हम लेके ना आते बच्चे को। और जब सब कुछ तुमने कर दिया और उसके बाद तुम उसके बाद भी उसको यहाँ पे 1.5 घंटा रख रहे हो, क्यों रख रहे हैं? अपनी गलती को छुपाने के लिए ये फिर पैकेजिंग कर रहे हैं। इनसे कंट्रोल ही नहीं हुई वो लड़की। इनके पास ना डॉक्टर की पास कॉम्पिटेंस थी इनके, और ना ही इनके पास इक्विपमेंट थे। इनके पास सिर्फ बेवकूफ हमारा बनाते रहे सुबह से लेके। ये लड़की यहाँ पे थी, मेरी सिस्टर यहाँ पे थी, और मैं एक सेकंड के लिए चंडीगढ़ से इनके साथ कॉन्टिन्यूस कॉल के ऊपर था, बेटा क्या हो रहा है। एंड सारा 40s में इंतजाम करके रखा, मैक्स में इंतजाम करके रखा, सारे डॉक्टर्स को टाई अप करके रखा। एम से वी वर कॉन्टिन्यूसली ऑन दिस थिंग दैट you take whatever you want to take, but kindly say डॉक्टर एम्स के इनको बोल रहे हैं कि नहीं करनी है, नहीं करनी पैकेजिंग, आप ऐसे भेज दो। फिर इन्होंने 1.5 घंटा लगा लिया। एम्स से बड़े डॉक्टर हो गए हैं। मेरे हेमरेज एक सेकंड जो है जी, वो जो है ना क्रिटिकल होता है पेशेंट का। इन्होंने 2 घंटे यहीं लगा दिए। वो वही हुआ, 2 घंटे इन्होंने यहाँ लगाए, 15 मिनट के अंदर लड़की खत्म हो गई। और आज और उससे बड़ी बात समझिए सर, उससे बड़ी बात समझिए, आज सुबह हम क्यों आए। हमने कहा जी यहाँ से जाते हुए इन्होंने मैम हमें एक ना जी रेफरल स्लिप दी। इनके जो पेशेंट यहाँ का इनका कोई लड़का अजीत था, वो गया साथ में, उन्होंने हमारे से जो रेफरल स्लिप थी वो वापस ले ली। कहते जी हमें रास्ते में दिखानी पड़ती है, वी डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट। आज सुबह हम यहाँ पर आए, मैं कहा जी हमें आप हमारी जो अपने रेफरल स्लिप थी वो दे दीजिए, हमारे एडमिशन नोट्स दे दीजिए, हमारे ओटी के नोट्स दे दीजिए, नर्सिंग नोट्स दे दीजिए, आपने जो ट्रीटमेंट किया हमारे वो नोट्स दे दीजिए। वो हमारा लीगल राइट है कि नहीं है जी? दैट इज अवर लीगल राइट टू हैव ऑल द ट्रीटमेंट रिकॉर्ड। और इनका स्टाफ, हमें सारा स्टाफ 5 जने मिलके, वो सरदार जी है, एक यहाँ पे कोई काली टी शर्ट वाला लड़का था, 2-3 लोग और, वो सब हमें मारने को दौड़े हैं। They did not allow us to speak to the doctor even. Then the police came. Then the police has called the उन डॉक्टर के घर लेके गए हमें, मुझे और इनको, और वहाँ पे they don't have anything to say। और यहाँ पे ये डॉक्टर आके बोलते चलो जी हो गया जी, की हो गया जी।
व्हाट काइंड ऑफ शेमलेस इमोशनलेस पीपल यू आर। तेरी लड़की मरती ना, तेरे को पता लगता की हो गया जी। हराम जादो, ऐसी बात करते हो तुम लोग। आई एम सॉरी, आई एम लूजिंग माई कूल, बट वी हैव लॉस्ट आवर डॉटर एंड दिस इज द कंडक्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल। क्या दे देंगे साले हमें? ये 5 करोड़ दे देंगे, 10 करोड़ दे देंगे, वी डोंट वांट एनीथिंग, बट हाउ कैन दे बी नेग्लिजेंट टू अ पेशेंट? दे हैव किल्ड अ यंग गर्ल ऑफ 29 years old। एक दिन की बच्ची है, उसने अपनी मां को नहीं देखा, वो उसको कौन संभालेगा सारी जिंदगी? दिस इज एब्सोल्युटली sheer नेग्लिजेंस। सारे सर्कमस्टांसेस इंडिकेट कर रहे हैं, शुरू से एडमिशन से लेके एम्बुलेंस में बाहर भेजने तक, दैट दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ नेग्लिजेंस। और इन लोगों के खिलाफ नथिंग लेस देन 302 कल्पेबल होमिसाइड का पर्चा दर्ज होना चाहिए इसका। दैट इज व्हाट वी हैव रिक्वेस्टेड द पुलिस आल्सो। और अभी भी डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, अभी बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट देने में 1 घंटा लगेगा। वाई? जब पेशेंट आपने अपने यहां से डिस्चार्ज कर दिया तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आप क्यों नहीं दे रहे? डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि जी अभी हमें 1 घंटा लगेगा वो पेपर्स बनाने में। आई टोल्ड हिम, मैं कहा डॉक्टर साहब पेपर्स में ना मैनिपुलेशन मत कर लेना अपने आप को सेव करने के लिए। यू वुड बी कॉट एंड यू वुड बी कॉट वेरी बैडली एंड वी हैव नॉट कम हियर टू डू एनी काइंड ऑफ ए वायलेंस। लड़की का नाम क्या था? एकता। शादी को कितना टाइम हुआ था? शादी उसकी 1 साल हुआ था, 1 साल 1 महीना। तो 9 महीने के प्रेगनेंसी टाइम में शुरू से ट्रीटमेंट इसी हॉस्पिटल से लिया गया? नहीं, कुछ दिल्ली से चल रहा था, अब 3-4 महीने से यहीं से चल रहा है कंटिन्यू। हाँ, यहीं से कंटिन्यू। डिलीवरी जो है सिजेरियन होगी? नहीं, कुछ नहीं बताया गया था, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। उन्होंने कहा लास्ट मोमेंट, कल उसका बिल्कुल लास्ट डे था। 9 मंथ के बाद भी जो टाइम पूरा होता है वो पूरा हो चुका था, कल लास्ट डे था उसका 27 तारीख को। तो इन्होंने बोला कि बस उसको लेके आ जाना सुबह। पहले इन्होंने इंड्यूस करा। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो जेपी हॉस्पिटल में आप मौजूद हैं, तो किसकी लापरवाही मानते हैं? डॉक्टर की, सारी लापरवाही डॉक्टर की है। हमारे जब एक बार हो गया कि बच्चे को भेजना है यहाँ से, तो 1.5 घंटा क्यों रोका हमारे को? ओटी में हमें जाने नहीं दे रहे हैं और हमारे को कह रहे हैं जी भेज रहे हैं। और ये जो सब्सिक्वेंट बदतमीजी होती है ना जी, ये अपनी गलतियों को, अपनी रॉन्ग डूइंग्स को हाइड करने के लिए होती है। इट वॉज समथिंग काइंड ऑफ प्लान्ड। वो लोग अगर आएंगे अपने स्टाफ को पहले बोल के रखना कि इनको उकसाना ताकि ये लड़ पड़े, इनके ऊपर बात आ जाए। दैट इज व्हाट द स्ट्रेटजी वाज, व्हिच इज सो एविडेंट। सर, ये जो एकता है वो कहीं जॉब करते हैं? एकता जी दिल्ली HDFC बैंक के अंदर जॉब करती है लड़की। सर, बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से या किसी से भी? सर, हमारा तो सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है पूरे प्रशासन से कि जो इतने नेग्लिजेंट डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन जो कि इतना नोबल प्रोफेशन है, डॉक्टर्स को लोग जो है भगवान से ऊपर मानते हैं, भगवान पता नहीं है कि नहीं, लाइफ बचाने के लिए डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, वो लोग अगर इस तरह के नेग्लिजेंट काम करेंगे, पैसे के लालच में इस तरह से अपना दिमाग खराब करके रखेंगे, तो इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ममता गोयल हूँ जी, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एट प्रेजेंट जेपी हॉस्पिटल के अंदर। और ये पेशेंट हमारे रेगुलर एंटीनेटल में थे, लेकिन ये हमारे पास डिलीवरी के लिए जैसे आते हैं वैसे नॉर्मली आए थे। इनके साथ बस एक ही प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट और इरेगुलर मेडिकेशन लेते थे अपनी बीपी की, वो एक चीज़ थी। बट व्हेन जब ये आए तो इनके साथ जो जैसे नॉर्मल हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, पहले हमने पेन्स देने की कोशिश करी, उनसे पेन्स बर्दाश्त नहीं हुए, थोड़ा बीपी भी बढ़ रहा था उनका ज़्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी इरेगुलर मेडिकेशन पे थे। तो उनको फिर डिसीजन लिया गया कि सिजेरियन करना है। सिजेरियन के बाद एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एटॉनिक PPH, जिसके अंदर जो बच्चेदानी होती है वो सिकुड़ने की अपनी क्षमता जो है वो ऑलमोस्ट नील हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं सिकुड़ के उसके अंदर जो ब्लीडिंग की जो कैपेसिटी रोकने की होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो एक खुली थैली के तरह ब्लीड करती रहती है। उसको एक जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं हम लोग मेडिसिन और उसको लेके, वो सारा कुछ करा गया। 1-1.5-2 घंटे ऑब्जर्व करा गया कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रही है हमारी मेडिकेशन और हमारे ट्रीटमेंट के लिए या नहीं। जब पता चला कि नहीं हो रहा है तो इनके रिश्तेदारों से बात करी गई, इनके अपने डॉक्टर्स से बात करी गई, और उनकी सलाह के अनुसार उन्होंने जब बोला कि भी नहीं मैडम, आपने जो ट्रीटमेंट दिया है वो जो ट्रीटमेंट है वो आपका एडिक्वेट है और हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हो? तो हमने कहा जैसे आप कहते हो, आप अगर आप चाहते हो तो वी वुड लाइक टू रेफ़र इनको, पेशेंट को, किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर। तो वो मान गए थे इस चीज़ के लिए। तो जो रेफ़र करने से पहले पेशेंट को स्टेबल करना होता है, उसको भेजने के लिए जो उसको मेडिकेशन, ब्लड, सब कुछ होता है,
वो सारा कुछ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हमने फिर से उसको स्टेबलाइज करके उसको वी ट्राई टू शिफ्ट हर, एंड ड्यूरिंग शिफ्टिंग वो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, दैट इज़ आई एग्री कि वो किसी के हाथ में नहीं होता। हम लोगों को ये लास्ट में जैसे जैसे 1-1.5 घंटा पास हुआ और कुछ और टेस्ट रन थ्रू करे हमने, तब हमें ये पता चला कि वो DIC के अंदर जा रही थी, जो कि एक कंडीशन है जिसमें बच्चेदानी तो बच्चेदानी, इवन आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग की जो कैपेसिटी होती है, जब भी आपको कहीं पे जख्म लगता है ब्लड आपका क्लॉट होता है, उससे ब्लीडिंग रुकती है, वो जो कैपेसिटी आपकी है वो आपकी ख़त्म हो जाती है बॉडी के अंदर। एंड ये पेशेंट के ऊपर होता है, उसकी अपनी कंडीशन अपनी बॉडी के हिसाब से होता है, तो वो उसका प्रॉब्लम आ रही थी, एंड दैट इज़ द रीज़न शी वॉज रेफर्ड इमीडिएटली टू हायर सेंटर। तो मैम स्टार्टिंग से बीपी इशू को लेकर ही केस इतना कॉम्प्लिकेट? हाँ जी, बीपी तो एक चीज़ ऐसी है, देर आर फ्यू थिंग्स इन हमारे इसके अंदर, प्रेगनेंसी विथ बीपी, प्रेगनेंसी विथ डायबिटीज़, प्रेगनेंसी विथ, तो ये दे आर नॉट सिंपल प्रेगनेंसीज, दे आर ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। परिवार वालों का एक और एलिगेशन है मैम, जब एक तक को यहाँ से जब वो डिस्चार्ज किया गया दूसरे हॉस्पिटल के लिए, तो आपके हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ मौके पर नहीं जी, हम हर एक पेशेंट को ये हमेशा मतलब नोट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो पेशेंट प्रॉपर एम्बुलेंस में जाए और हमारा ICU स्टाफ उसको एकम्पनी करे, जो कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने में सक्षम होता है। लेकिन मैम एक स्टाफ की बजाय एक स्वीपर का बीच में मैम रोल आ रहा है कि एक स्वीपर नहीं को नहीं इस तरह से नहीं shift नहीं किया नहीं गया। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, नो स्वीपर वाज आपकी नॉलेज में था मैम कोई स्टाफ? नहीं नहीं, स्टाफ ही गया था जी, ICU का स्टाफ गया था, स्वीपर वीपर तो कोई भी नहीं जाते जी, स्वीपर ऐसा कोई नहीं मिलता। थैंक यू सो मच।